Hello everyone, welcome on Smart Study. This time I have brought MCQs on Combustion and Flame, Chapter 6, Class 8 Science. From now onwards मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और साथ ही उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दी है। आई सजेस्ट यू ऑल कि आप इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुने ताकि आपके जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएं। With no further discussion, let's dive into the video. What is combustion? A chemical process in which a substance reacts with carbon dioxide to give off heat. Combustion एक chemical process है जिसमें एक substance कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है. While second option says that it is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. Second option के हिसाब से combustion एक chemical process है जिसमें substance oxygen के साथ react करके heat produce करता है. Now the third option says that combustion is a physical process in which substance reacts with oxygen to give off heat. थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंबशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंबशन. अब समझते हैं कि कंबशन क्या है. कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करती है देन इट इज़ कॉल्ड कंबशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं, और इसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है. अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा आंसर ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. एंड ऑप्शन 3 आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कंबशन को एक फिजिकल प्रोसेस बोला गया है. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, both physical and chemical process. Fourth, neither physical nor chemical process. In the last question itself, I told you that combustion is a chemical process. Last question में ही हमने डिस्कस किया combustion एक chemical process है. You can mark second option as the correct answer. Choose the most appropriate definition of combustible substance. आपको combustible substance की definition बतानी है. First option, substance that does not undergo combustion. फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग है combustible substances वो substances है जिसमें आग नहीं लगती है. सेकेंड ऑप्शन substance that does not catch fire. सेकेंड ऑप्शन में भी यही कहा गया है कि combustible substances वो substances है जो आग नहीं पकड़ती हैं. ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों में एक ही बात कही गई है, बस बोलने का तरीका अलग है. थर्ड ऑप्शन both 1 and 2. Fourth, substance that undergoes combustion. Combustible substance का definition होता है ऐसी चीजें जो आग पकड़ लेती है या जलने वाली चीजों को combustible substances बोलते हैं. Substance which catches fire or undergoes combustion is called combustible substance. You can mark option 4 as the right answer. Examples of combustible substances are. Combustible substances के examples बताने हैं हमें. Combustible substances वो substances होते हैं जिसमें आग लगाई जा सकती है. So let's find it out कि कौन से combustible substances हैं. First option is paper, wood and stone piece. Paper and wood are combustible substances. Paper और wood में आग लगाया जा सकता है. But stone piece non-combustible substance है क्योंकि इसमें आग नहीं लग सकती है. Second option, paper, matchstick and iron nails. Paper, matchstick are combustible substances. इनमें आग लगाया जा सकता है, but iron nails में आग नहीं लगाया जा सकता है. They are non-combustible substance. तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन, charcoal, kerosene oil and glass. Charcoal and kerosene oil are combustible substance और glass non-combustible substance है, इसमें आग नहीं लग सकती. Again, थर्ड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा. फोर्थ ऑप्शन इज वुड, पेपर एंड मैचस्टिक्स. ये तीनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, तीनों में ही आग लगाया जा सकता है, तो हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा. फ्यूल ऑफ आवर बॉडी इज पेट्रोल, फूड, वाटर. इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करती है? फूड है. हमारी बॉडी का फ्यूल फूड है. जिस तरह फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसी तरह फूड छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है.
Which one of these is false about combustion? Some options are given below and you'll have to tell which one of these is false about combustion. नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है false statement कौन सा है combustion के बारे में. So let's find it out. First option says that it is a chemical process. Yes, we already know that combustion एक chemical process है. तो first statement true है. Second option says that heat and light are given out during combustion. Second option, heat और light produce होता है combustion process में. Yes, this statement is also true. Third option, air is essential for combustion. First question में हमने पढ़ा combustion एक chemical process है जिसमें substance oxygen के साथ react करके heat produce करती है. अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो कंबशन प्रोसेस कैसे होगा? इसलिए कंबशन प्रोसेस के लिए एयर की प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ट्रू हैं, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन 4 होगा. हमें इस क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, बट इसमें एक भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, इसीलिए आंसर नन ऑफ दीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of these is incorrect? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है. ऑप्शंस को रीड आउट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कंबशन 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज रैपिड कंबशन. इस कंबशन प्रोसेस में तेज़ी से आग लगती है. जब आप मैच स्टिक को मैच बॉक्स पे रब करते हो तो एकदम से आग लगती है. सिमिलरली जब आप गैस लाइटर यूज़ करके गैस स्टोव चलाते हो उसमें भी तेज़ी से आग लगती है. ये 2 एग्जाम्पल्स थे रैपिड कंबशन के. Now second type of combustion is spontaneous combustion. जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आग लग जाए उसे बोलते हैं spontaneous combustion. Spontaneous combustion ऑटोमेटिक combustion होता है क्योंकि जब सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें अपने आप आग लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल कोल माइंस में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से कोल डस्ट में आग लग जाता है. फॉरेस्ट में सूरज की गर्मी से जो आग लग जाती है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन. इस कंबशन प्रोसेस में सडन रिएक्शन होता है, साथ ही लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. जब क्रैकर फटता है तो बहुत तेज आवाज आती है और लार्ज अमाउंट में हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. विच वन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन रैपिड कंबशन, burning of a matchstick or gas lighter near a gas stove. That's absolutely correct. Second option, spontaneous combustion, burning of crackers. The given example of spontaneous combustion is incorrect. Crackers का जलना spontaneous combustion का example नहीं है, ये explosion का example है. Option 2 is incorrect. Option 3 says explosion. It is the evolution of enormous amount of heat, light and sound. Example, burning of crackers. This option is correct. Question was which one of these is incorrect? We have already got to know that option 2 is incorrect. Ignition temperature can be defined as first option, substance catching fire at any temperature. Second, the highest temperature at which a substance catches fire. Third, the lowest temperature at which a substance catches fire. इस क्वेश्चन में आपको इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन बतानी है इन तीनों ऑप्शंस में से. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर. लोएस्ट टेम्परेचर या फिर सबसे कम टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस में आग लग जाए उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. So we can mark option 3 as the correct answer. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. Choose correct option for combustible substance. Combustible substance की डिटेल्स दी गई है नीचे ऑप्शंस में, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. फर्स्ट ऑप्शन, combustible substance is also called fuel. For example, paper, wood. Exactly, combustible substance को fuel भी कहते हैं जैसे कि wood and paper. Second option, magnesium and charcoal are combustible substances. चैप्टर की बिगनिंग में ही आपने ये इमेज देखा होगा अपनी NCERT टेक्स्ट बुक में. इस इमेज में आप जलता हुआ मैग्नीशियम वायर देख सकते हैं जो कि प्रूफ करता है कि मैग्नीशियम कंबस्टिबल सब्सटेंस है और चारकोल होता है लकड़ी का कोयला जिसे हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं. ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है. सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है. लेट्स मूव टू थर्ड ऑप्शन. Third option says that these substances cannot catch fire
below its ignition temperature. Ignition temperature मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये lowest temperature है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस में आग लगती है। इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस है जो कि इग्निशन टेम्परेचर से पहले आग नहीं पकड़ सकती। राइटली सेड, कंबस्टिबल सब्सटेंस के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ही होगा सो दैट उसमें आग लग सके। Options 1, 2 and 3 all are correct. That's why we will go with option 4, which says all of the above options are correct. Which one of these is incorrect? दिए गए ऑप्शंस में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। Fuel can exist in solid, liquid and gas form. Examples of solid fuel are coal and wood. That's completely right. Fuel तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, solid, liquid and gas. Coal and petroleum solid fuel के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। लेट्स सी सेकेंड ऑप्शन क्या है। लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। गैशियस फ्यूल्स आर LPG एंड CNG। LPG और CNG गैशियस फ्यूल के एग्जाम्पल है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट लर्न फ्यूल टाइप्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पेपर एंड वुड, सेकेंड ऑप्शन केरोसिन ऑयल, थर्ड ऑप्शन चारकोल एंड मैच स्टिक्स, फोर्थ ऑप्शन आयरन नेल, स्टोन पीस एंड ग्लास। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया पेपर, वुड, केरोसिन ऑयल, चारकोल एंड मैच स्टिक्स all are combustible substances, but iron nail, stone piece and glass are the examples of non-combustible substances. So the right answer will be option 4. Full forms of LPG and CNG are: first option LPG, liquefied petroleum gas; CNG, compressed natural gas; second LPG, liquid petrol gas; CNG, combustion natural gas; third LPG, liquid natural gas; CNG, combustible natural gas. While the fourth option is all of these. Full form of LPG is liquefied petroleum gas. This fuel is used for cooking in our homes in gas cylinders. Now full form of CNG is compressed natural gas, and this fuel is used in automobiles and vehicles. With no doubt, correct answer will be option number 1. My prime motive is to include all the important questions of the chapter, including short and long answer type questions, so that you achieve complete understanding of each and every concept. I hope you like this video. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर करें as much as you can. And get your friends to benefited with this by sharing this video with them. Hope to see you soon. Till then, stay safe, stay healthy.